ठीक है, हमें ऑडिबल टू एवरीवन बेटा? चलो, आज का फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट पेपर कैसा था बेटा? Now this is a time for you, all of you, to be a little bit more serious better. Don't take it light. Don't lose your hope. Be strong. जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करने की कोशिश करिए बेटा, ठीक है? But don't lose the hope at any cost. स्टार्ट कर लें? हाँ बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर्मुलेस रिकलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. चलिए, वेव ऑप्टिक्स में द फर्स्ट फॉर्मूला जो अपन याद रखते हैं, दैट इज अबाउट योर वेव फ्रंट. What is a wavefront bit? I told you the locus of all the points which are in the same state of your vibration is called as of your wavefront. जितनी बार हो सका उतनी बार लिखने की कोशिश करो. That will be helpful for you beta. Okay. Wavefront is nothing but the locus of the point which are in the same state of your vibration. देखो इसके अंदर अगर मैं पहली बात करूं for spherical wavefront, for spherical wavefront, amplitude is inversely proportional to your radius. For cylindrical wavefront, amplitude is inversely proportional to 1 by root r. Very important beta, isn't it? Intensity is inversely proportional to your r square होता है, और इसके अंदर intensity is inversely proportional to your r होता है, इसीलिए. ठीक है? चलो, the next thing which we need to remember the formula in this one is interference. Interference के फॉर्मूला याद है बेटा? It is superposition of two or more waves. Like मान के चलिए फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है, y1 is equals to your a into sin of your omega t, और एक इक्वेशन दे रखा है y2 is equals to your a or b, say for example b into sin of your omega t plus of your phi. दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है. जब इन दोनों को ऐड करते हैं by the principle of superposition, we'll get y1 plus of your y2. That will be equal to some resultant amplitude r into your sin omega t plus of your theta. यानी एक वेक्टर हो जाएगा a, and this one is your another vector, that is nothing but of your b. इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, and this is making an angle of your theta. इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगी phi. ठीक है ना? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा? ये r की वैल्यू कैसे निकालते हैं? r is equals to your अंडर रूट ऑफ योर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला a square plus b square plus 2ab into your cos of your phi. Phi is the angle between two vectors. r is equals to your under root of your a square plus b square plus 2ab into your cos theta.
एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बेटा। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी लिख रहे हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल्स टू योर I1 plus of your I2 plus 2 times of your root I1 I2 into your cos of your phi. Very important formula. I is equals to your I1 plus I2 plus 2 times of your root I1 I2 into your cos of your phi. ठीक है ना। cos phi पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। अगर मैं इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करूं, when cos phi is equals to your 0, या बोल सकता हूं phi वैल्यू यानी cos phi की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, isn't it? यानी phi की वैल्यू must be equal to how much will be 0 degrees, isn't it? कितना हो जाएगा जब phi वैल्यू will be equal to how much will be 2n into pi के लिए हो जाएगा, और इसके लिए path difference will be always be equal to n into your lambda। उसी तरह से when I am taking the value of your when cos phi value is equals to -1 के लिए phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा 2n - 1 into your pi, और पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा x is equals to your 2n - 1 into your lambda divided by your 2। क्लियर है? पाथ डिफरेंस इज 2n - 1 into your lambda divided by 2। पाथ डिफरेंस इसके लिए मैक्सिमा के लिए n into your lambda, एंड मिनिमा के लिए डेल्टा x is equals to 2n - 1 into your lambda by 2। 2n - 1 आ रहा है मतलब n you start from your n is equals to 1 2 3 go on like this one। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिख रहा हूं मैं बेसिकली, तो आई मैक्स का फॉर्मूला याद है आप लोग को, आई मैक्स विल बी इक्वल टू योर रूट ऑफ योर I1 प्लस ऑफ योर रूट ऑफ योर I2 का होल स्क्वायर, इजंट इट? और आई मिनिमा का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम विल बी इक्वल टू योर रूट ऑफ योर I1 माइनस रूट ऑफ योर I2 का होल स्क्वायर। वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। क्लियर है? इज इट क्लियर? इन जनरल बेटा, in general intensity is given by the formula I is equals to your 4 times of your I naught into your cos square phi divided by 2। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I naught is maxima, so it is your I max into your cos square phi divided by 2। जनरल फॉर्मूला है ये इंटेंसिटी का when I1 and I2 both of them are same। ठीक है, चलो। And next one and very important one is Young's double slit experiment के formulas, YDSE के formulas। ओके, YDSE के लिए देखो बेटा, मैक्सिमा के लिए अगर फॉर्मूला निकाल रहे हैं अपन, डेल्टा x विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू n into your lambda। इसके अंदर एक स्क्रीन होता है यहाँ पर इस तरह से, और there will be the two slits in this one right now। यहाँ पर this one is S1 and this one is S2। इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस D, और इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कैपिटल D, और यहाँ पर अपने को सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, एंड देयर विल बी सम इंटेंसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग राइट नाउ। तो यहाँ पर एक इंटरफियरेंस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर से एक इंटरफियरेंस एट ए पॉइंट ऑफ योर P। पॉइंट ऑफ योर P मे बी मैक्सिमा और मिनिमा, सो दैट विल बी इक्वल टू योर Y। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक ले रहे हैं एंगल, so that will be making a small angle, that is nothing but of your theta। This is a basic rough diagram related to this one। ठीक है ना। for maxima delta x is equals to your lambda part of relation, और path difference जो हो जाएगा, path difference is delta x is equals to d into your, when theta is very small it will be equal to your tan theta। ठीक है, is it clear? यानी डेल्टा x will be equal to your d into tan theta will be equal to your y divided by your capital D। So path difference for the maxima will be equal to how much बेटे, d into your y part of relation। क्लियर है? तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, n into lambda that is equals to d into y divided by capital D। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर पड़ा, मतलब y will be equal to your n into lambda into capital D divided by your small d।
So this one is a general formula. Y nth bright point will be equal to your how much? Nth bright. ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ पर और एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए बेटा, फॉर मिनिमा याद है फॉर्मूला? किसी को जल्दी बताइए. Path difference will be equal to how much for me? Same relation. So delta x will be equal to your d into y divided by capital D. This will be equal to 2n minus 1 into your lambda divided by 2. That is equals to d into y divided by capital D. तो y का फॉर्मूला आ गया मेरे पास. Y is equals to your 2n minus 1 into lambda into your capital D divided by 2 times of your small d. This is y nth of your dark. Y nth of your dark. So y nth of your dark के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है ना? Very important formula. This is your y nth bright and this one is your y nth dark. इतना फॉर्मूला तो मिनिमम आपको याद रखना है बेटा. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आता है फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला. फ्रिंज विड्थ रिप्रेजेंटेड बाय योर बीटा. याद है फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ के लिए बेटा? Fringes now width is nothing but what? The distance between two consecutive maxima or distance between two consecutive minima is called as of your fringe width. ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. फ्रिंज विड्थ का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए. बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय योर स्मॉल डी. कैपिटल डी कांस्टेंट होगा, स्मॉल डी भी कांस्टेंट रहेगा, तो वेवलेंथ चेंज होगा तो बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. क्लियर है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए बेटा. इफ YDSE is performed in water, तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा. तो फ्रिंज विड्थ will be beta dash will be equal to your beta divided by your mu. Very important relation बेटा. It will be 1 by mu times of the fringe width in your air. ऐसा बोल सकते हैं. यानी fringe width beta will be lesser than the fringe width in your air. Okay? Is it clear? Sure. Next one. If one of these slit, important data. If one of these slit is covered with a small film of thickness मान के चलो t and refractive index मान के चलो mu. ठीक है ना? तो इसका पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? याद है डेल्टा x इज इक्वल्स टू योर mu माइनस 1 इंटू टी. ये होता है पाथ डिफरेंस. ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो जैसे हम लोग ने इन दोनों के बीच में एक थिन फिल्म रखें, देयर विल बी शिफ्ट इन द सेंट्रल मैक्सिमा. तो कितना शिफ्ट हो जाएगा ये अपने को निकालना बेसिकली. और जहां पर आपने इस फिल्म को रखा वही डायरेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ट्राइंग टू शिफ्ट. सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द होल फ्रिंज पैटर्न विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? कितना मूव होगा? द डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर के पास ना पड़ के अब थोड़ा ऊपर पड़ेगा. सो दैट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ योर y इज इक्वल्स टू योर mu minus 1 into your thickness t into capital D divided by your small d. Very important formula. इतना शिफ्ट कर जाएगा ऊपर के डायरेक्शन, जहां पर आपने रखा उसके वही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर है? या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, y is equals to mu minus 1 into thickness t into capital D by your small d can be written as of your beta divided by lambda. In terms of your fringe width भी लिख सकते हैं. इतना शिफ्ट हो जाएगा. mu is the refractive index, t is your thickness. अगर number of fringes निकालना है अपने को, तो number of your fringes shifted will be equal to your mu minus 1 into your thickness t divided by your lambda. यानी y divided by fringe width होता है बेटा. बीटा will get cancelled, so direct formula अपने पास आ रहा है mu minus 1 into thickness divided by your lambda.
Fringe width will remain same beta, but only the number of fringes will be shifting in the upward direction. Clear है? ये हो गया थोड़ा नॉलेज अबाउट योर YDSC. इतना बेसिक नॉलेज तो अपने को याद रखना है, ठीक है ना. डाइफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस सेम नहीं रहता बेटा. देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है, अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा के पास ये होगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा. तो इसकी जो इंटेंसिटी रहती है ना, दैट विल बी रिमेनिंग सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना. लेकिन डाइफ्रैक्शन में वैसा नहीं होता. तो डाइफ्रैक्शन के अंदर देखो क्या होता है एक बार. डाइफ्रैक्शन मतलब क्या बेटा, द बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द शार्प कॉर्नर्स इज नोन एज ऑफ योर डाइफ्रैक्शन, isn't it? So डाइफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है बेटा, द सिंगल स्लिट बोलते हैं इसको बेसिकली. जस्ट उल्टा होता है यहाँ पर. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होते हैं बेटा, पर मिनिमा what will be the condition beta, a sin theta will be equal to your a sin theta will be equal to your n into your lambda. Okay, a sin theta will be equal to n into your lambda. वहां पर ये मैक्सिमा के लिए था, ठीक है ना. और यहाँ पर जो वेवलेंथ है ना, दिस वेवलेंथ इज ग्रेटर देन ऑफ योर स्लिट विड्थ, यानी sin theta की जो वैल्यू रहेगी that will be greater than 1, which is not possible. So diffraction cannot be observed if lambda is greater than a, sin theta will be greater than of your 1. Therefore diffraction is not possible. Diffraction is not possible. Diffraction possible के लिए it should be much lesser than the wavelength of your light, isn't it? अगर wavelength of the light is much lesser than of your a, then sin theta will be equal to theta, and that will be equal to how much beta, a into your theta will be equal to n into lambda, यानी theta will be equal to n into lambda divided by your a, ठीक है. width of central maxima कितना होता है बेटा इसके अंदर, is it clear for everyone? क्लियर है? चलो, for maxima a into your sin theta will be equal to your 2n plus 1 into your lambda divided by your small d. n की वैल्यू will be starting with your 1. फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर आएगा, पर फर्स्ट मैक्सिमा n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये into your sin theta will be equal to 3 lambda divided by 2, ठीक है ना. ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा. थीटा अगर वेरी स्मॉल हो गया तो साइन थीटा को थीटा ले लीजिए बस, ठीक है ना. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डाइफ्रैक्शन याद है किसी को, दैट विल बी इक्वल टू योर 2 times ऑफ योर थीटा, यानी 2 times ऑफ योर थीटा मतलब दिस विल बी लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय योर स्मॉल ए. Other fringe will be equal to lambda d. बस उतना याद रख लीजिए, that's more than enough in this given condition. इतना तक याद रख लीजिए. अब इसमें जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं ना बेटा, देखो ये अगर स्लिट है तो सेंटर के पास मैक्सिमा होता है, फिर उसके बाद स्लोली डिक्रीज होते जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी उतना ऐसा ग्राफ आता है बेसिकली, फाइनली जीरो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना. सेंटर के पास मैक्सिमा, उसके बाद इंटेंसिटी स्लोली डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर फॉर एवरीवन? Is it clear? चलो, next one, very important part, that is about your resolving power. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स निकलते हैं बेटा इस पे, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर एंड ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस वन. रिजॉल्विंग पावर होता क्या है बेटा? सो डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर लेंसेज विद डायमीटर डी जनरली प्रोड्यूस द सेंट्रल मैक्सिमा व्हिच आर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं बेटा. सो फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा के लिए बेसिक कंडीशंस होते हैं, बस इसमें थोड़े से बेसिक फॉर्मूले याद रख लो, दैट्स मोर देन एनफ, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए.
If I am talking about for telescope, टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर कैसा निकालोगे? फॉर टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर विल बी इक्वल टू योर d डिवाइडेड बाय योर 1.22 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू योर 1 by थीटा। क्लियर है? d क्या होता है यहाँ पर बेटा? d इज योर डायमीटर, d इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ योर अपर्चर, डिस्टेंस नहीं होता, बिग स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है ना? d is the diameter of the objective or aperture, lambda is the wavelength of the light used, and theta is the minimum angular separation between the object, which is also called as limit of resolution. Theta is also called as what? Limit of resolution भी बोल सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला इतना याद रख लीजिए। उसी तरह से अगर मैं माइक्रोस्कोप के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर योर माइक्रोस्कोप फॉर्मूला याद है रिजॉल्विंग पावर का? For the microscope, resolving power will be equal to 2 mu into your sin theta divided by your 1.22 into lambda. यहाँ पर ये जो mu sin theta है ना, mu into sin theta is called as of your numerical aperture. Is called as what? Numerical aperture. And mu is the refractive index of the medium between object and as well as of your objective, and lambda is your wavelength, and theta is your semi-vertex angle of the cone light from the object. Theta is nothing but what? Semi-vertex angle. Theta is your semi-vertex angle. मतलब अगर ये लेंस ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर अपने पास लेंस कुछ रखा हुआ है, this will be the sun, this will be the theta, ऐसा कुछ, ठीक है? and mu is what बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन दैट वन। ओके, अगर मैं ह्यूमन आई के लिए बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट देख ली बेटा, लिमिट ऑफ रेसोल्यूशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, so resolving power for normal resolving power will be equal to 1 by 60 degrees. यानी resolving power of your human eye will be equal to 1 by 60 into डिग्री को अगर करना है तो pi by your 180 रेडियंस कर दीजिए, you will get the answer in terms of radians. ठीक है, ये बेसिक रिलेशन है, बस इतना से याद रख लीजिए, that's more than enough for this one. Resolving power for the microscope, this is the formula. Resolving power for the telescope is this one is the formula. 1 by theta is known as of your limit of your resolution. 1 by theta sir, na sir, 1 by theta sir, d theta. Okay, हाँ with d theta या small theta is very small angle बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसमें। क्लियर है? Any doubt in this one to anyone? इतना बेसिक फॉर्मूला से याद होंगे ना अभी सभी लोग को? चलो, उसके बाद पोलराइजेशन के अंदर दो फॉर्मूले से याद रखने हैं अपने को, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इन पोलराइजेशन एक फॉर्मूला होता है मैलस लॉ, याद होगा आप लोग को, मैलस लॉ, that is intensity at a certain angle theta will be equal to your I naught into your cos square theta. और सेकेंड वन होता है ब्रीवस्टर्स लॉ, is known as ब्रीवस्टर्स लॉ, यानी mu is equals to your tan of your IP. इसमें देखो बेटा होता क्या है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, और ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट होती है। ये इन दोनों के बीच में ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इतना बात याद रख लीजिए बेसिकली, ये दो बेसिक कंडीशंस में याद रख लीजिए, दैट्स मोर देन एनफ टू डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट, ठीक है? और वाईडीएससी में देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कोइंसाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा कि नहीं, मैं फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेसिकली, isn't it? If fringes coincides, अगर fringes coincide कर रहे हैं, then n1 lambda 1 will be equal to n2 into lambda. n1 lambda 1 will be equal to n2 into your lambda. Clear है? Is it clear? चलिए, पोलराइजेशन में ऐसा कुछ होता है बेसिकली, आप लोगों को मालूम है, ये अगर लाइट ऐसा कुछ है डॉट विथ रेस्पेक्ट टू योर एरो मार्क्स, दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट,
This one is your unpolarized light. Polarized light मतलब क्या बेटा? This will be your polarized light. Only arrow mark like this. ठीक है ना? तो देखो एक होता है पोलराइजर और एक होता है एनालाइजर और ये होता है ट्रांसमिशन एक्सेस। तो ये जो होता है ना इसको हम लोग ट्रांसमिशन एक्सेस बोलते हैं, जिसमें से वाइब्रेशंस जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी अनपोलराइज्ड लाइट इस पे डाल दी जाती है डॉट विद रिस्पेक्ट टू एरो, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है। तो जैसे ही ये एक पोलराइजर से जाएगा, फर्स्ट वन इज पोलराइजर, नेक्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर एनालाइजर। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी I1 दैट विल बी इक्वल टू, इसकी आधी आ जाएगी I0/2, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी I2 दैट विल बी इक्वल टू योर I1 इंटू योर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके हिसाब से अपने को न्यूमेरिकल करते चले जाना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लीजिए, आप लोग एक बार ट्राई करिए। assuming human people यानी eyeball to have a radius of 0.25 centimeter and a comfortable weaving distance. Comfortable weaving distance of 25 centimeter. The minimum separation between two objects that human eye can resolve at 500 nanometer wavelength is. This is the question. Chalo, can anyone try this one? This is better. एक बार देख लो जल्दी से. The human eye has a radius of 0.25 centimeter and a comfortable viewing distance of 25 centimeter. The minimum separation between the two objects that one human eye can resolve at 500 nanometer will be equal to how much? तो sin theta की वैल्यू निकालो। sin theta की वैल्यू is equals to radius 0.25 divided by viewing distance, that is nothing but 25. That will be equal to 1/100. Resolving power का formula for the general viewing, that is 1.22 lambda divided by your 2 mu into your sin theta. So that will be equal to 1.22 into lambda is 500 nanometer 10 to the power of -9 divided by 2 into your refractive index of this medium. जो भी refractive index दे रखा है that is the value, कुछ भी नहीं दिया तो mu into sin theta की value 1/100. इसको simplify कर लो, that will give me the answer. ये मैं देखो ऐसा निकाला हूँ, ये अपना लेंस होता है और ये अपना वीविंग पॉइंट होता है बेसिकली, और ये सेमी वर्टेक्स एंगल होती है। दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है 0.25 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए साइन थीटा मैंने यहाँ से इस तरह से निकाला। ठीक है, चलिए थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। तो इतना तो बेसिक नॉलेज अपने को याद रखना है इन द YDSC पार्ट ऑफ रिलेशन, मैक्सिमा मिनिमा के कंडीशंस। रेसिप्रोकल है बेटा, रिजॉल्विंग पावर। चलो एक क्वेश्चन देखिए बेटा, सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 103। टू पोलराइड्स आर बीन प्लेस्ड एट ए पाथ ऑफ योर, ट्राई करिए कोई, एक मिनट। Two polarides are being placed in the path of an unpolarized light beam of intensity I0 such that no light is emitted from the second polaride. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with that of the first polaroid is placed between the polarides, then intensity of the light emerging will be equal to your how much? चलो करिए जल्दी।
इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पोलराइजर से जब जाएगा तो व्हाट विल बी द रिलेशन, ऑप्शन ए का तो इनको किसी को आया, ठीक है चलो, दिस इज योर फर्स्ट पोलराइजर एंड दिस इज योर सेकंड पोलराइजर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस होगा, ये ट्रांसमिशन एक्सिस होगा। Unpolarized light has been passing through the, ये हो गया unpolarized light dot and as well as of your arrow mark. It becomes a polarized and its intensity is becoming for me half, यानी यहाँ पर इसकी intensity आ गई मेरे पास I naught divided by 2। सेकेंड पोलराइजर के बीच में कुछ एंगल है, तो यहाँ पर हो गया I2 will be equal to your I1 into your cos square theta। मैलस लॉ लगा लीजिए बेसिकली, तो I3 will be equal to your I2 into your cos square 90 minus theta, crossed है ना, थर्ड पोलराइजर whose polarization angle makes an angle theta with that of your first polarizer बोला है, तो ये हो जाएगा मेरे पास I3 that is equals to I2 की वैल्यू है कि मेरे पास I1 into your cos square theta into your cos square 90 minus theta, ये हो फॉर्मूला। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा, I नॉट डिवाइडेड बाई 2 into your, ये हो गया cos square theta into cos square theta मतलब कितना हो जाएगा बेटा, cos square 90 cos 90 minus theta is nothing but of your sin square theta। उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू योर I नॉट बाई योर 8 into your 2 sin theta into your cos theta whole square, ठीक है ना। So that will be equal to how much for me, I naught divided by 8 into your sin square 2 theta। मैंने क्लास में भी करवाया था ये प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है चलिए। नेक्स्ट वन करके बताइए। माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव अपर्चर 8 mm। माइक्रोस्कोप हम लोग ने किए नहीं है तो इसको हम लोग बाद में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट मॉडल है, एक बार ट्राई करिए। Two point sources S1 and S2 are being separated by a distance of 10 micrometer emits the light waves of your wavelength 4 micrometer in phase. A circular wire of radius 40 micrometer is placed around the source as shown in figure. Then O is the center of the circle and OS1 and OS2. Okay, OS1, O is the center यहाँ पर। अब इसका कंडीशन देख लीजिए, पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए, कहीं पर भी वायर पे से ये पॉइंट भी है तो यहाँ से एक वाइब्रेशन जाएगी, तो यहाँ से एक वेव जाएगी ऐसा यहाँ पर, और यहाँ से एक वेव जाएगी यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 10 माइक्रोमीटर। सो दिस वन इज योर 10 माइक्रोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। और इसका रेडियस कितना है यहाँ पर, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 40 माइक्रोमीटर इज योर रेडियस। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, देखिए बेटा, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। मेरे पास की नहीं है बेटा, ओके तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी योर S1b माइनस ऑफ योर S2b। दोनों डिस्टेंस सेम है तो पाथ डिफरेंस इज 0 पॉइंट बी, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, फेज डिफरेंस इज फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू योर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू मच फॉर बेटा, I इज इक्वल्स टू योर I max into your cos square phi divided by 2। phi की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास I max, यानी पॉइंट्स B and D, points B and as well as of your D are your bright points. So for bright points the path difference is given how much for me in the problem beta, 4 micrometers की distance में basically point A and B are dark and point C and D are P and D are bright points बेटा, क्योंकि यहाँ पर जितना फेज डिफरेंस है यहाँ पर भी उतना ही फेज डिफरेंस है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही, B and D should be having the maximum intensity and A and C are the dark points, B and D are your bright points, so C will be the answer for this। Clear? चलिए
ABM माइक्रो पावर ग्रिड, ये देखिए बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कोई करेगा ये? ट्राई करिए बेटा। In Young's double slit experiment, the two slits are illuminated by light beam of consisting of the wavelength 4200 angstroms and 5040 angstroms. The distance between the slits is 2.4 mm and the distance between the slit and the screen is 200 centimeter. The minimum distance from the central bright fringe to the point where the bright fringes due to both the wavelength will be coinciding will be equal to how much? कोई करेगा? Young's double slit experiment में two slits are illuminated by light of A value or A value. Distance between the slits दे रखा है 2.4 and the distance between the slit and the screen capital D दे रखा है. Minimum distance from the central bright point to the point where the bright fringes due to both the wavelengths are being coinciding. Wavelength दे रखा है lambda 1, उसके लिए मान के चलो n1 fringes है और lambda 2 के लिए n2 fringes है. यानी दोनों कर कोइंसाइड हो रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी n1 lambda 1 will be equal to your n2 lambda 2 condition. Isn't for minimum distance to coincide with n1 value must be equal to n plus 1 and n2 value must be equal to your n. उसके हिसाब से आप कर लीजिए, बस हो गई बात. Isn't it? यहाँ पर n1 की वैल्यू will be equal to n plus 1 और n2 की वैल्यू for coinciding must be equal to 1, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा एक होता है ना, इसलिए मैंने 1 ऐड कर लिया. तो यहाँ पर हो गया n plus 1 into फर्स्ट वेवलेंथ ले रहा हूँ तो 4200 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू n into 5040 एंगस्ट्रॉम. तो ये बन जाएगा मेरे पास 4200 n is plus of your 4200 is equals to your 5040 n. तो इसमें से n की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली n की वैल्यू पूरी आ जाएगी, तो n की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5. तो पूछ रहा क्या राइट नाउ? Minimum distance from the central bright point where the fringes have been formed. यानी required distance will be equal to your y is equals to your n1 lambda 1 into capital D divided by your small d. तो n1 की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 5 plus 1. n1 की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू आ गई 5 ना, 5 plus 1 यानी 6. Now this will be 6 into wavelength is 4200 into capital D value is given how much for me? 4000, this is angstrom at 10 to the power of minus 10 into this one is 2 divided by small d 2.4 into 10 to the power of minus 3. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer for your basic condition. ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट है, ट्राई कर लीजिए. डन, चलिए 104 भी ट्राई कर लीजिए एक बार. Interference fringes are obtained in Young's double slit experiment using the beam of light consisting two wavelengths 500 nanometer and 600 nanometer. Bright fringes due to both the wavelengths coincide at 2.5 mm from the central maxima. If the separation between the slit is 3 mm, then the distance between the screen and the plane of the slit will be equal to how much? ये भी condition यहाँ पर coincide हो रहा है, तो इसके लिए भी n1 lambda 1 will be equal to your n2 into your lambda 2. ठीक है ना? The same n1 plus 1 ले लीजिए, n2 plus 1 ले लीजिए, that will be simplifying for that one. So bright fringes are being given by what formula बेटा? Bright fringes के लिए formula क्या? Y is equals to your n into lambda into capital D divided by a small d. उसमें क्या बोल रहा है right now? दे रखा है the separation between the slit and the distance between the screen and the plane slit. Interference beam wavelength, first one is 500 दे रखा है, next one is 600. Bright fringes due to both the wavelengths coincide at your 2.5 mm. यानी y की x की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 2.5 mm is equals to your n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? If the separation between the slit is 3 mm, then the distance on the screen of the slit will be equal to how much? n की वैल्यू निकाल लीजिए. Wavelength value is equals to first one ले रहा हूँ मैं 500 into cap the distance between the slits is given 3 mm, distance between screen and the slit यानी capital D. n1 lambda 1 will be equal to how much? And this will be your n plus 1
into lambda 1 is your 500 is equals to this one is n into this will be your 600 nanometer. ये 20 चले गए, तो this one is your 5n plus of your 5 is equals to your 6n. ओके, तो n की वैल्यू आ गई कितनी मेरे पास 6. ठीक है, तो अगर मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, तो यहाँ पर मैं 6 डाल लूँ into 500 nanometer 10 to the power of minus 9 into capital D divided by small d. Small d is 3 into 10 to the power of minus 3. Is asking the distance between screen and the plane. यानी capital D is equals to how much? इसमें से capital D की वैल्यू निकाल दीजिए. That will give me the answer. Next one, in an experiment, light is passing through the two slits. सारे क्वेश्चन सी है इसको. हाँ बेटा, कोइंसाइड कर रहे हैं तो n और n+1 लेके कर लीजिए. दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है, थोड़े PYQs निकाल के कर लीजिए बेटा. दैट विल बी हाईली यूजफुल फॉर यू. ज्यादा कुछ कंडीशंस भी नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, और वो तरह आप निकाल के कर लीजिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. टू 2011 में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप के लार्ज क्या यूज होगा, लार्जर अपर्चर से मोर रिजॉल्विंग इमेज आएगा वगैरह कुछ पूछा था बेसिकली. 2020 में एक भी क्वेश्चन पूछा था बेटा, वो बेस्ड अपॉन योर पोलराइजिंग एंगल. ऊपर एक बार देख लीजिए. YDSC पे भी पूछा था डायरेक्टली, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, और कैपिटल D को 2 टाइम्स कर दे और स्मॉल d को हाफ टाइम कर दें तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी. याद है किसी को? 2 lambda into capital D बन जाएगा. दिस विल बिकम फॉर मी D by 2, दैट विल बिकम 4 lambda into capital D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 4 टाइम्स ऑफ बीटा. ऐसा कुछ फॉर्मूला पूछा था. टेलीस्कोप्स में भी और एक क्वेश्चन दे रखा था, वेवलेंथ दे रखा था 600 नैनोमीटर्स पर डिफ्लेक्शन, और डायमीटर दे रखा था मेरे पास 2 मीटर्स, एंड ही वाज आस्किंग अबाउट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में मतलब 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल D फॉर टेलीस्कोप के लिए. यानी दैट विल बी इक्वल टू 1.22 into wavelength is 600 nanometer, that is 16 to 10 to the power of minus 7 divided by this one is 2 meters. इसको सिंप्लीफाई कर लो, you will be getting the answer. ठीक है ना. ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से पूछे थे बेसिकली, तो थोड़ा बहुत आप लोग इस पे ध्यान दे लीजिए. दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है ना. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कल के क्लास में कर लेते हैं बेटा, और इसके बाद थोड़े आकाश के क्वेश्चंस है ऑन कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स एंड एज वेल एज ऑफ योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो कल की क्लास में कर लेते हैं. ठीक है. And write the exams with a little bit confidence. फॉर्मूले बेस तो भी एटलीस्ट रिवाइज करके जाइए. मैंने आप लोग को पूरे फॉर्मूलेस भेजे थे, आकाश का सोर्स लेके मैंने आप लोग को एक 11th एंड 12th के पूरे फॉर्मूले बुकलेट फिर से एक बार भेजे हैं. जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट द चैप्टर्स लाइक एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह निकाल के एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा. मॉडर्न फिजिक्स मैं भी एक बार रिवाइज करता हूँ, ये भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए. कल हम लोग एक्सक्लूसिवली विल ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स ऑन वेव ऑप्टिक्स एंड एज वेल एज ऑफ योर रे ऑप्टिक्स के थोड़ा बहुत एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के. यानी अब तक के जितने ग्रैंड टेस्ट हुए पूरे आकाश में से सेपरेटली ग्रैंड टेस्ट में के पूरे क्वेश्चन सेपरेट निकाल के उस पे से प्रॉब्लम्स करवा दूंगा. ठीक है. सो टुमारो विल बी डूइंग ओनली द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने ऑलरेडी आप लोग को भेजा है, वो भी मैं करवा दूंगा. तो थोड़े क्वेश्चंस मैंने आकाश से निकाल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल के भेजे थे, आप लोग के पास आए नहीं है मुझे पता नहीं, एक बार देख लीजिए.
ये वाले क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे ही मैं आप लोग को वेव ऑप्टिक्स का भी भेज दूंगा, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, नहीं आए तो फिर बाकी के क्वेश्चंस मैं भी एक दिन टाइम लेके इसको पूरा सॉल्व करते चले जाऊंगा, फॉर्मलेस करके निकाले अपने को नहीं। मेरी क्लास अब 9:30 से होगी बेटा, 9:30 से लेके 10:30 तक, ठीक है ना। इसके की मेरे पास नहीं है बेटा, मैंने खुद बहुत ज्यादा रिस्क लेके इधर उधर से मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके निकाले थे, और 10-20 ग्रैंड टेस्ट के पेपर्स के आकाश के पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है। उसी तरह से वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के भी पूरे क्वेश्चंस एक जगह सॉर्ट आउट करके रख दे रहा हूँ, और उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स से भी निकाला है मैंने, वो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अपनी तरफ करने की कोशिश करिए, एंड लेट मी नो, मैं भी इसको एक बार जितने हो सके उतने मैं आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चन से बेटा, फॉर्मूले बेस्ड है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, सो एक बार ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली कल के क्लास में तो हम लोग ए प्रॉब्लम्स और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स करता हूँ। रे ऑप्टिक्स भी थोड़ा रिवाइज करके आ जाइए आप लोग, इंस्ट्रूमेंट्स भी एक बार रिविजन कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। फिर 3 चैप्टर्स कल रिविजन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरा मॉडर्न फिजिक्स के लिए, वो भी 2-3 दिन करेंगे आराम से, ठीक है ना। पूरे आकाश की जब तक 20 ग्रैंड टेस्ट पेपर में है बेटा, और 20 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स में के पूरे वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे क्वेश्चंस मैंने एक जगह शॉर्ट आउट करके रख लिया है। उसको मैंने जैसे ही हम लोग का एक बार रे ऑप्टिक्स का रिवीजन हो जाएगा, वो पूरे प्रॉब्लम्स हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो एक साथ अच्छे वाले क्वेश्चन 20-25 मिल जाएंगे अपने, ठीक है ना। खतीजा क्या है बेटा आपने भेजा?